Hello everyone. Is my voice is clear, so kindly write one in the chat box. Thank you so much, Saroj. I request again to all of you, if my voice is clear, kindly write one in the chat box. I request everyone to stay connected. We will be starting our session within few minutes. We are just waiting for few more participants.
I request everyone that just write your name and from where you have, joined your profile, currently where you are working. Just write in the chat box so we can have the participant's profile. And just write your full name with your correct spelling so we can issue the certificate to you. Thank you everyone for responding. I'm waiting for others as well that just write your full name and make sure that you write your correct spelling so we can write the same on the certificate. And secondly, just write your current organization name or your designation where you are working.
Thank you everyone for responding me in the chat box. I request those who want to join. I think we have some heads of school here, so make sure that your teachers are here in the meeting. I will log the meeting within 5 minutes. So then after 5 o'clock, no one will allow to enter in the meeting. So just make sure that your team has joined before 5 p.m. and we will start within 5 minutes. Hi, Salima. Salima, is my voice is clear to you? Yes, very clear. Okay, thank you. I will start within 1 or 2 minutes. Okay. Okay, so let's start our session. It's 5 p.m. Thank you for joining us on time, and we are sorry and we apologize that those who are, waiting for us. So let's start the session formally. Hello, everyone. I'm Mona Chandani, Director at TLC ECD Daycare and CEO at ECD4U. Basically, ECD4U is an online and on-site training and learning platform where we are offering, one-day workshops, awareness sessions, free webinars, ECD Foundation and advanced courses for early years caregivers. Today, we are here with our session, Choose My Plate, in which we will be discussing about our daily diet plan, in which we will try to cover all of the queries. And today we have with us Dr. Salima. Thank you so much, Salima, for giving your important time to us, precious time to us. And every time, whenever we ask for the session, you always say yes. So thank you so much. Thank you. We are glad that we to have you on our platform. And I request all of the participants just to mute yourself. And if you have any query in between the session, just write in the chat box. And after the session, after Dr. Salima will complete, we will take your queries in the end of the session. And hand over to you, Salima. Thank you so much. Mona, I would like to share my screen. Yeah, can you just wait for a second? I'm making a co-host. Sure. Now I think you have all of the right. Yeah, perfect. So if the voice is not clear or if you can't see the screen, so just write in the chat box so we will, settle down all of the queries.
Thank you so much, everyone, for joining us. Hand over to you, Salima. Okay, so Assalamu alaikum everyone and good evening. It's an immense pleasure to be part of this webinar once again. And Mona has been very kind in inviting me always for a very different talks to talk to you all. Or is baar bhi we have come up with the new topic, which is like the choose my plate. Before starting this topic, I really want you all to think in your minds कि क्यों हम ये हमेशा बात करते हैं कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि हम बच्चों की डाइट को मेंटेन करें। अपने आप से हम ये सवाल करते हैं। आज मुझे जब मोना ने ये टॉपिक दिया तो मैं ये सोच रही थी, उस वक्त मैंने मोना से बहुत सवाल भी किए कि डू यू रियली वांट मी टू टॉक अबाउट द फ्रॉम बर्थ टू 3 years or after 3 years of age. So I just made my mind to talk to you guys till the 5 years of age, from birth to 5 years of age. The reason being, I think this is the crucial time when the development of the brain and entire development of the body is taking place. So yes, I want to start out with my topic. My name is Dr. Salima Naveed Manji. Many of you know about me. I'm a social worker and a trained health advocate, and I have been moderating and doing awareness sessions as speaker, and somewhere I have been the moderator. It's been like more than 10 years, and professionally I am medical educationist from Aga Khan University and dental surgeon from Fatima Jinnah Dental College, Karachi. Have secured so many distinctions with various researchers internationally and nationally. Currently, I'm working at Fatima Memorial Hospital, Lahore as oral medicine lecturer and dental consultant. So I just asked you a question before I started my session. So I asked you all that why do you think that proper diet is important for everyone? So just remember one thing that when we talk about the development, हम बात करते हैं कि बच्चों की नशोनुमा होती है और किस तरह वो बढ़ते हैं, ग्रोथ होती है। अक्सर आपने बात भी सुनी होगी कि लोग आपसे बात करते हैं कि मेरे बच्चे की तो जो है वो कद में कोई इजाफा नहीं हुआ है या वो उसके वजन में कोई फायदा नहीं हुआ है। तो क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं? आपने क्या बच्चे के साथ वो सारी चीजें की हैं प्रॉपरली जो उसको उस चीज की रिक्वायरमेंट है? अब मैं जब ये बात करती हूँ कि आपने उसको रिक्वायरमेंट की है कि नहीं की है, इसका खास मतलब ये है कि क्या आपने ये देखा है कि आप रोजमर्रा में उसको वो हेल्दी चीजें खिलाते हैं कि नहीं। एक स्टडी जब की गई तो उसमें बात करते हैं कि अक्सर लोगों में देखा गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चों को बिस्किट, सैंडविचेस, नूडल्स, चिप्स और चॉकलेट जैसी चीजें जो है वो दे देते हैं कि चले रास्ते में है तो ये खा लेगा, चले इनके साथ बैठा है तो ये खा लेगा, बगैर ये सोचे समझे कि इसके अंदर कितना रिफाइंड फूड है और कितना ज्यादा ट्रांस फैट्स हो सकता है। अब ऐसे बच्चे जब वो ऐसी चीजों में मुब्तला होते हैं तो उनकी ऑलरेडी एपेटाइट चिप्स वगैरह से बढ़ जाती है और वो फिर जब रियल फूड जो कि मेन मील होता है, जब उसका खाने का वक्त आता है तो बच्चे उस चीज को मना करते हैं। अब क्यों मना करते हैं? उसमें एडेड फ्लेवर्स होते हैं जो आपके चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट्स वगैरह में आपको मिल रहे होते हैं। अब यहाँ पे रोल आता है पेरेंट्स का। हम बात करते हैं पेरेंटिंग। तो डाइट के अंदर पेरेंटिंग का एक खास रोल इसलिए है कि अगर आप बच्चों को पहले से ही स्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे, मैं ये नहीं कहती कि आप कंप्लीटली आप होल्ड कर दें ताकि बच्चे कहीं और जाए तो वो कभी एडजस्ट ना सके, उसे थोड़ी थोड़ी चीजों का बिल्कुल टेस्ट दे लेकिन उसकी लाइफ का वो हिस्सा ना बनाए। ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने मेक श्योर करना है कि आपने बच्चों की जो डेली रूटीन है, स्कूल वो जाते हैं या घर में बैठते हैं या दोस्तों में बैठते हैं, बच्चों में बैठते हैं साथ साथ, तो उस टाइम पे आपने उनको वो मील इंट्रोड्यूस कराना है जो आपको लगता है कि उस वक्त उसकी ग्रोथ के लिए उसको फायदा देगी, ना कि वो फूड जो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट को होल्ड करे, रोक दे। ठीक है। अब बच्चों के लिए सबसे ज्यादा देखा गया है कि जब वो ऐसी चीजों में मुब्तला होते हैं तो उनके विटामिन डी बहुत कम हो जाते हैं जो बोन के लिए बहुत मजबूती करने में मदद करते हैं। फिर बहुत सारे बच्चों में B3 जो है उसकी कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो बच्चों में ब्रेन्स में एक बीमारी होती है न्यूरैल्जिया के नाम से, बच्चों में उस तरह की बीमारी पैदा होती है। वो होती क्या है कि बच्चे जो हैं वो सही तरह काम नहीं कर सक रहे होते, कंसंट्रेशन कम हो जाता है B3 की वजह से। अगर B3 की कमी होगी विटामिन की तो उसमें भी बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। इंपॉर्टेंटली ये कहा जाता है कि B3, D3 और B12 जो कि मसल्स के लिए B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए ग्रोथ के दौरान, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हम देखते हैं ना, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बच्चे को ये मल्टीविटामिन दें। हम मल्टीविटामिन की बात करेंगे बाद में, एज वाइज कौन से मल्टीविटामिन देने चाहिए खाने के साथ साथ, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ योर डाइट, दे गिव यू न्यूट्रिशन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये 3 कंपोनेंट जो विटामिन के उसको देखते हुए उस बच्चे को उस तरह से रोकें। अब इन 3 कंपोनेंट्स को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं?
सबसे इंपॉर्टेंटली कुछ डाइट के पार्ट्स हैं जिसपे हम बात करेंगे आज, ठीक है। अब नेक्स्ट, जब बच्चा आपका बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं उसको किस तरीके से खाना खिलाने की कोशिश करूं। सबसे बड़ा चैलेंज माओ का ये होता है, बीइंग मदर माई सेल्फ, मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा टेंशन प्रेशर इसी बात का लेती थी कि मैं अपनी बेटी को किस तरह से खाना फीड करूं, ठीक है, क्योंकि मेरी बेटी के भी बहुत सारे ऐसे टाइप्स ऑफ फूड थे जो उसको नहीं पसंद आते थे या वो रिलक्टेंट थी खाने के लिए। तो कुछ हैबिट्स मॉडिफिकेशंस होती हैं जिसको आपको जो है फॉलो करना होता है, और वो जो है वो उसमें आपने फॉलो करना होता है। अब वो क्या क्या चीजें होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों के अंदर ये अपॉर्चुनिटी आपको हेल्थ और लर्निंग की पैदा करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को देखना होगा, जो आपके लिए मैं कहूंगी आज की पूरे सेशन में टिप्स होंगी। सबसे पहला टिप है आपके लिए कि बच्चों को इंकरेज करें खाना खाने के लिए थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। अब इसकी अच्छी सी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि बच्चों को ये बहुत पसंद है कि अगर आप कोई चीज को एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें कि अली को मैंने जब एप्पल दिया तो अली कभी बीमार नहीं हुआ, ठीक है, कोई स्टोरी टेलिंग करके बताएं, कोई बच्चे को बताएं कि जैसे ये किस तरह से बना, जैसे मशीन में उसने आपको हेल्प किया शेप बनाने में, या कोई प्रोसेस के दौरान आपको उसने मदद की, तो उस दौरान आपने उसको इंकरेज किया बच्चे को कि वो उस एक्सपेरिमेंट को देखे और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो बच्चा खाना खाए। और चीजें क्या हो सकती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं तो वो कहते हैं हमें सब्जी खाना पसंद नहीं है, हमें जो है वो दाल खाना पसंद नहीं है, क्योंकि आपने एज मदर या फादर आपने कोशिश ही नहीं की कि आप बच्चे को न्यू न्यू फूड्स इंट्रोड्यूस करें। अक्सर ये कहा जाता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को इनिशियल लेवल से हर फूड के थोड़ा थोड़ा टेस्ट दें। ये बातें भी सुनी होंगी अपने बड़ों से। इसका खास रीजन ये होता है कि आप बच्चे को जब टाइम वाइज इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं फूड को, तो बच्चे में अडेप्टेबिलिटी आती है, टेक्स्ट की, टेक्सचर की, टेस्ट कैसा है, हर चीज की उसको एक अडेप्टेबिलिटी आती है। तो इसी तरह बच्चे को इंकरेज करना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीजें न्यू वो एडमिट अपने एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो न्यू चीजों को लेने से बिल्कुल भाग रहा हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मदर फादर खुद एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं बच्चे के साथ, या वो खुद भी सब कुछ खा रहे हैं, तो बच्चा इजीली जो है वो चीजों को अडेप्ट जल्दी करेगा। सो नंबर वन टिप, एक्सपेरिमेंट करना सिखाएं थ्रू मेनी वेज, जो मैंने आज आपको बताया। नंबर टू, प्लान स्नैक्स एंड मील टाइम। इसमें आप ये कर सकते हैं कि बच्चे का मखसूस टाइम रखें खाने का। अगर आपने उसका बहुत मील टाइम इंक्रीज कर दिया तो बच्चे की एपेटाइट मर जाएगी, और अगर आपने उसको बहुत जल्दी खिला दिया तो उसे बहुत जल्दी जो है ना भूख लगना, हंगर होना शुरू हो जाएगी। तो एक टाइम रखे, फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा शुरू में सुबह को जागता है, अगर घर में रहता है वो जागता है 9 बजे, तो कोशिश करें आप आधा पौने घंटे के अंदर उसे खाना खिला दें, सो दैट वो पूरा जो है 3-4 आवर्स हेल्दी खेलता रहे और घूमता रहे, और ना वो भूख की वजह से आपके पीछे येलिंग करे, ठीक है। बच्चे का कभी भी मील जो है उसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस में यही बताती हूँ आपको कि अक्सर बच्चे जो है वो रोते दो ही वजह से, या तो पेट में दर्द होता है या फिर भूख लग रही होती है, ठीक है, या सोना होता है। ये चीजें होती है नॉर्मली जो बच्चे जिसकी वजह से आपको तंग कर रहे होते हैं। तो आप एज मदर इस चीज को इतना इजीली इस चीज को याद रख लेते हैं कि अगर मैंने बच्चे को स्नैकिंग देनी है तो प्रॉपर देनी है, मील्स देने तो प्रॉपर देने। अब हम मील्स और स्नैक्स की बात करेंगे आगे चल के। आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू कि किस किस टाइम पे आपको स्नैकिंग करनी है बच्चे की, और किस किस टाइम पे मील करना है। अक्सर कुछ खाने ऐसे होते हैं, मील्स होते हैं जो बहुत लाइट होते हैं, तो उसमें स्नैकिंग आप इंक्रीज कर सकते हैं। स्नैकिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप बच्चे को बीच में कक्यूम्बर दे सकते हैं, कुछ फ्रूट की बाइट्स दे सकते हैं, कुछ शेक्स दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं। स्नैकिंग में हेल्दी इस तरह से आप डाल सकते हैं। अब मैं आपको आगे मेन्यूज भी बताऊंगी जिसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम जो है वो बच्चों में इस चीज का इंक्लूजन कर सकते हैं। तो सेकेंड टिप गुड हैबिट्स को डेवलप करने की ये थी कि आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी है स्नैक और मील टाइम्स को। ऐसा नहीं आपने रात के 2 बजे बच्चे को खाना खिलाया तो वो कब सोएगा अगर आप उसको खाना अभी खिला रहे हैं। और उसके सोने का पैटर्न भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना। अगर रोज आप 10 बजे सुलाते हैं तो कोशिश करें कि आप रोजाना ही 10 बजे उसको ले जाए। अगर एक दिन कभी ऊपर नीचे होता है तो आप उसको नेक्स्ट डे साइकिल में ठीक कर दें। मैंने अक्सर ये देखा है कि जो पेरेंट्स डेली अपना जो है वो एक रूटीन बना लेते हैं कि जो वो लेट सुलाने की उसमें बच्चे को कोशिश करे होते हैं, तो वो बच्चा हमेशा से एक लेट ही सोने वाला बन जाता है, ठीक है, चाहे आप जितनी भी एफर्ट कर लें। और इनिशियली 1 से 2 वीक्स आपको लगते हैं बच्चे का एक पैटर्न और मैं कहूंगी एक हैबिट को भी बनाने में, सही। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को मेक श्योर करें कि बच्चे का स्लीप पैटर्न, फूड पैटर्न बिल्कुल प्रॉपरली चल रहा हो, क्योंकि दे आर ऑल बिलोंगिंग टू ईच अदर, ठीक है, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। So third point is allow plenty of time. Okay.
सो समटाइम्स हम पेरेंट्स का भी मैं कहूँगी और शायद हमारी फैमिली में भी प्रॉब्लम होता है कि हमें एक प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता कि हम कोई चीज़ को दें। फॉर एग्जाम्पल अगर मील टाइम है तो हम कोशिश करते हैं कि बस जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, हमारी जान छुट जाए, या फ़ोन दे देते हैं साथ तो कहते हैं खाना ताकि बच्चा खा ले। मुझे लगता है हर बच्चे को, जिस तरह बड़े को एक टाइम चाहिए होता है एक फूड को खत्म करने में, बच्चे को भी एक टाइम चाहिए होता है एक्सेप्ट करने में। बच्चा तो अपना एक टाइम बना रहा होता है ना, एक एक्विंट करने के लिए अपने आप को फूड के साथ। इस तरह आपको भी एक टाइम देना चाहिए बच्चे को कि वो किस तरह से जो है ना अपने आप को एडजस्ट कर सके एक न्यू फूड के अंदर। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लगता है कि दिस फूड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ खाना खिलाएं। फॉर एग्जाम्पल स्टोरीज पढ़ाएं, हो सकता है कि आप उसका साइकिलिंग करवाएं उसको, हो सकता है उसे कोई चीज पजल वगैरह दे दें, कोई चीज की गेम्स दे दें, एक्टिविटी कर दें, पेंटिंग करवा दें, कोई चीज में उसको इन्वॉल्व कर दें ताकि उसका वो टाइम ईटिंग का, उसको टेस्ट का एक्सेप्ट करने का, फूड को एक्सेप्ट करने का भी उससे मिले। गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड टू द चाइल्ड एज वेल। डू नॉट हैम्पर योर फूड टाइमिंग्स। अगर आपको प्रेशर है घर से तो मेक देम अंडरस्टैंड, काउंसिल योर फैमिली दैट आई रियली वांट टू गिव टाइम टू माय किड, कि मैं उसको अच्छी तरीके से खिला सकूं, क्योंकि अगर मैं जल्दी में खिलाऊंगी तो मैं फोन तो उसे दे दूंगी, मेरा टाइम तो बच जाएगा, लेकिन आगे जाकर मैं उसकी हैबिट्स को डेवलप गंदा करेंगी। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 90% लोग यही करते हैं कि एक फोन दे देते हैं और फिर खाना खिलाते हैं। दे जस्ट वांट टू सेव देमसेल्व्स। ठीक है, और आप डैमेज करें बच्चे का ब्रेन, बच्चे के आगे की लाइफ को, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी आदतें जो फोन वाली होती हैं वो आगे जाकर बच्चे की आईज, बच्चे का ब्रेन डैमेज करती हैं। और एक और चीज डाइट से रिलेटेड मैं बता दूं जो इससे लिंक्ड भी है फोन से, इंपॉर्टेंट ये कि आप ये मेक श्योर करें कि कुछ चीजें ऐसी है जो बच्चे को हाइपर करती हैं। नंबर वन इज आपकी जितने भी कार्टून्स आप दिखा रहे होते हैं फोन पे या टीवी पे, नंबर वन वो आपके फूड में आपको हेल्प तो कर रहे हैं खिलाने में, लेकिन वो बच्चे को इन रिटर्न जो है वो हाइपर कर रहे होते हैं। नंबर टू, चॉकलेट्स एंड ड्रिंक्स। बहुत सारे बच्चे चॉकलेट्स प्रेफर करते हैं, टीथ भी खराब हो रहे होते हैं उनके, और सिवियर पेन के साथ आते हैं दांतों में। ठीक है, और चॉकलेट जो है वो बच्चे को हाइपर भी करते हैं, तो ये एक मूड को मॉडिफाई भी कर रहा होता है। एंड थर्ड इज लाइक सोडाज एंड ऑल। सही है, अगर आप बच्चा आपको रोज घर में देख रहा है कि आप जो है वो ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उस चीज के लिए आपको रिक्वेस्ट करेगा, और फिर आप उसको मना नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि बच्चा इतनी गलत चीज नहीं मांगता है। ठीक है, तो आपका एनवायरमेंट बहुत इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के फूड पे। फोर्थ इज डेवलप सोशल स्किल्स। यू कैन सी इन दिस पिक्चर एज वेल, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप सोशल स्किल्स। जब मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मेरी बेटी बड़ी हो रही थी तो मैं हमेशा से सोचती थी कि कोरोना आ गया, कोविड है, और मैं बच्चे को स्कूलिंग कैसे करवाऊंगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ पे जितने भी मॉन्टेसरीज थी, जो ईसीडीज थी, वो बंद हो चुकी थी। और रीजन ये था कि पेरेंट्स जो है रिलक्टेंट थे कि वो एक क्योंकि ऑफकोर्स एक हुजूम में पेरेंट्स और बच्चे आते थे, तो वो कहते थे कि हम कैसे बच्चों को लेकर आए। ऑनलाइन भी काफी क्लासेस हुई, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ नहीं किया, लेकिन इस पे बच्चों का बड़ा, मैं कहूंगी बच्चे और पेरेंट्स दोनों पे बहुत जो है वो असर पड़ा है। अब उस दौरान एक चीज जो मैंने फील की वो ये थी कि मैं बच्ची पर जितना भी होम स्कूलिंग कर लेती थी, लेकिन जो सोशल स्किल्स उसे ईसीडी से मिल सकते थे वो उसे नहीं मिल सक रहे थे। ठीक है, तो मुझे हमेशा से ये प्रॉब्लम होता था कि मैं क्या करूं। मैंने कुछ 6-7 महीने निकाले, और मुझे ऐसा टाइम मिला कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को घर में इनवाइट करूं बच्चों में से, ताकि वो उस बच्चे के साथ बैठ के खेले, सीखे, खाना वगैरह सब कुछ। और मैं खुद भी देख रही थी कि एक टाइम था मेरी बेटी का मूड मॉडिफिकेशन भी हो रहा था, उसका एक काइंड ऑफ खाने को एक्सेप्टेंस भी बहुत कम हो गई थी। और इससे खास रीजन ये था कि उसको एक सेम रूटीन मिल रही थी, लॉकडाउन था, कुछ करने को नहीं था, बाहर जा नहीं सकते थे, कोई बच्चों के लिए एक्स्ट्रा वैगन कोई एडवेंचर नहीं था। सो फूड का चैलेंज हमेशा से मेरे लिए रहा। फिर मैंने इवेंचुअली जो है वो जो हमारे आसपास की कम्युनिटी के बच्चे हैं, तो उनमें से किसी के साथ सोशलाइज करके उनके पेरेंट्स को कहा कि आप हमारे घर आए, हम कभी बच्चों को लेकर आएंगे साथ, ताकि कम से कम जो है वो इतना ज्यादा कांटेक्ट ना रहे, और जब तक हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक उसमें बच्चों के ग्रुप में। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे आते रहे मेरे घर पे, और मेरी बेटी जाती रही। मैंने ये नोट किया कि जो खाना मेरे लिए खेलते खेलते उसको खिलाने में भी आधा पौना घंटा लगता था, मुझे लगता था कि 15-20 मिनट में उसको खेलने से बच्चे के साथ बहुत ईजी हो गया। और क्योंकि वो बच्चा बड़ा था थोड़ा सा उसकी एज में, तो वो जो बच्चा खाता था तो वो उसको देख के मुझे कहती थी कि मुझे दो, हालांकि मैं उसको ऑफर नहीं करती थी, बच्चे बड़े को दे रही होती थी, उसका एक अलग मील होता था। अब यहाँ पे भी एक और चीज है, मैं आपको बात बताऊंगी चलते हुए। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कोई न्यू मील इंट्रोड्यूस कराना है तो आप उसको एक टैक्टिक ये भी कर सकते हैं कि आप दूसरे बच्चों को जो उसके साथ ग्रुप में बैठे हैं उनको भी साथ वो चीज को दे। अब आप अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं अपनी बच्ची को सिर्फ खाना खिलाऊं और सामने वाले को ना खिलाऊं, तो इट्स नॉट गोना वर्क एट ऑल। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रीट एवरी किड इक्वली।
ठीक है, how you gonna do that? If you give a bite to your child, give bite to another child, and this how she will create the respect for others as well. She will create the respect of sharing as well. और उसे समझ आएगा कि अच्छा ये चीज भी कुछ है, मतलब इसको इस तरह खाते हैं। क्या पता उस बच्चे से वो कोई स्टाइल सीख सके, बच्चे से शेयरिंग कर सके, एक सोशल नेटवर्क बना सके, डिस्कस कर सके, खाने को एंजॉय कर सके। ठीक है, सो सोशल स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डाइट एज वेल। सो स्कूल से एक चीज ये फायदा होता है तो वो घर में भी आप इस तरह से कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी टिप दी। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बड़े जो होते हैं, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, छोटे तो चलिए हम समझ आती है कि छोटे बच्चों को हम वाली चीजें नहीं जो है वो ऑफर कर सकते जो बड़ों को करते हैं। रीजन भी वो तीखी होती है, स्पाइसी होती है, और छोटे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते होते हैं। लेकिन व्हाट यू कैन डू व्हेन चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, व्हाट यू कैन डू इज, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि यू जस्ट टेक आउट द फूड बिफोर पुटिंग दी स्पाइसेस। आप बच्चे का खाना पहले निकाल ले, वही खाना जो आप अपने लिए बना रहे हैं, लेकिन स्पाइसेस कम करके या स्पाइसेस को निकाल के। ठीक है, इससे बच्चे को पता लगेगा कि मुझे इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। बच्चा कभी कभी लेफ्ट आउट फील करता है, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा आपको मैं कहूंगी रिलक्टेंट होता है एक्सेप्टेंस ऑफ फूड के लिए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये हैबिट भी जो है वो डेवलप करें। एंड लास्ट थिंग, most important, provide good role models. What you are doing, just expect your child to do that. Do not expect your child to do something else which you are not doing. सही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो करेंगे हरकतें, या आपका जो बच्चा का भाई बहन अम्मा बाप जो भी कर रहा होगा, या दादी दादा जो भी कर रहा होगा, अटेम्प्ट खाने में पीने में, जो चीज में भी, अगर आप चॉकलेट खा रहे होंगे तो वो आपसे वही मांगेगा। आप कोई जंक फूड खा रहे होंगे, अच्छा फूड खा रहे होंगे, जो खा रहे होंगे वो उस चीज को फॉलो करेगा। 5 साल के बच्चा जो होता है ना, 5 साल तक का बच्चा, 0 से 5 साल तक का बच्चा का दिमाग एक स्पंज होता है। आप उसे अच्छी चीज खाना सिखाएंगे, वो अच्छा खाएगा। जैसे मेरी बेटी को ये पता है कि मुझे कोई भी गलत चीज खानी है तो मुझे मेरी माँ नहीं देगी। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ जो एक उसने चीज देखी है, लेकिन उसको पता है कि मेरे घर में जो बाकी लोग हैं, अगर ममा नहीं होगी तो वो बाकी उससे वहां से मिल जाएगी। तो ये एक केयर होती है, प्यार होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये होता है कि आप एज मदर अपना रोल कोशिश कर रहे होते हैं कि आप उस तरह करें कि आप हेल्दी फूड तक लाए बच्चे को। लेकिन ठीक है, कभी कभी अगर उसको कोई चीज मैं कहूंगी कि इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो बड़े आपके जो घर में बड़े हैं, छोटे जो भी आपके साथ रह रहे हैं, उनको आपके साथ इतना आपका एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए कि आप ये मेक श्योर करें कि आप हर चीज एडमिनिस्टर करें, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा अमाउंट में उस बच्चे को वो इंट्रोड्यूस ना करें। तो इस तरह आप अगर अपने फैमिली के थ्रू उसकी हैबिट्स को ब्रेक करेंगे या बनाएंगे, तो वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। सो दिस इज समथिंग, आज जो सारी बातें हम करेंगे, ये सारी हैबिट्स के थ्रू आप कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, अगर आप इस तरीकों से ये डाइट प्लान्स इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों में, तो ही आपको मदद होगी। सो बिफोर शेयरिंग द डाइट प्लान्स, मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा कि मैं नेशनल केयर स्टैंडर्ड्स आपके साथ शेयर करूं कि किस तरीके से आप बच्चे को खाना डाइट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमने बात कर ली कि क्या तरीके होंगे, अब हम बात करेंगे क्या क्या कर सकते हैं इंट्रोड्यूस। सो यस, एवरी डाइट प्लान ऑफ अर्ली ईयर चिल्ड्रंस, मैं बात कर रही हूँ आज बर्थ से टिल 2, एंड देन हम एक बात करेंगे 3 to 5 years ऑफ एज के बच्चों के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट यू ऑल टू टेक आउट योर डायरीज और समथिंग विच वेयर यू कैन नोट आउट कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, इंडिया की, यूरोप की, अमेरिका की, कि वो अपने अपने कंट्रीज में क्या क्या करते हैं। ठीक है, जस्ट पोर इन योर क्वेश्चंस इन द चैट, आई विल बी लुकिंग आफ्टर इट। Okay, so it's very important that you have a balanced diet that is comprising of certainly essential nutrients. Now, what are those? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैल्शियम। ठीक है, हम बात करेंगे आगे कैल्शियम आपको कहाँ से मिलती है। आपने सबने भी सुना होगा दूध से मिलती है या डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलती है। प्रोटीन ज्यादातर आपको फिश या आपको कहना चाहिए मीट चिकन से ज्यादा मिल रहा होता है। ठीक है, या पल्सेस वगैरह से। आयरन आपको सबसे ज्यादा मीट से मिलता है, पालक से मिलता है, कलेजी से मिलता है, एप्पल से मिलता है। ठीक है, एंड वाइटामिन्स, वाइटामिन्स आपको फुल ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है। ठीक है, ये आपको ग्रोथ जो है वो उसमें प्रमोट करता है, ताकि बच्चे की जो है वो एक प्यूबर्टी तक वो अचीव कर सके। अक्सर बच्चे आपने देखा होगा कि 2 साल के होते हैं और वो लगते हैं 1 साल के। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल के होते हैं और लग रहे होते हैं वो 4-5 साल के। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से बच्चे की ग्रोथ कर रहे हो और बच्चे का भी एक्सेप्टेंस कहाँ है। ठीक है, और डाइट से स्टार्ट करने से कबल बोले कि वो ब्रेस्ट फीड बच्चे को कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर ब्रेस्ट
अगर पाउडर मिल्क उसे दे रहे हैं या आप उसे कोई डब्बे का दूध दे रहे हैं, जो भी आप उसको दे रहे हैं, फॉर्मूला मिल्क वगैरह, उन चीजों का इंश्योर करें कि आप बच्चे की पूरी दूध की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं या नहीं करते हैं। आज हम बात करेंगे कितने दूध भी देना चाहिए आपको बच्चों को, ठीक है। सो यस, अगर मैं बात करूं छोटे बच्चों की, और कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों के ये व्यूज भी सुने और बहुत सारे लोगों के थॉट्स भी डिफरेंट है इस मामले में कि बच्चे को कितना दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। मदर फीडिंग की बात कर रही हूँ मैं। मदर फीड तक वैसे नहीं करते। अगर आप उसे फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि फॉर्मूला मिल्क से उसे आप शिफ्ट कर दें आप काउ मिल्क पे, या फिर उससे डब्बे वाले मिल्क पे ले आए। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनको काउ मिल्क पे लाना इजी होता है क्योंकि वो सेम कंसिस्टेंसी होती है, सेम उसका मैं कहूँगी हेवीनेस होती है जो जिस तरह से मदर की होती है, तो काउ मिल्क की भी इसी तरह से होती है। और कहते हैं बहुत सारी बुक्स में भी आया हुआ है कि बच्चे जो है डब्बे वाले दूध को भी एक्सेप्ट करते हैं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जस्ट आस्क योर पीडियाट्रिशियन व्हाट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट एंड व्हाट योर चाइल्ड इज ईगर टू गेट इट, ठीक है। दूसरी बात ये, जो भी वो ले रहा है वो खुशी से ले, ऐसा नहीं आप उसे फोर्सफुल ट्रीट कर रहे हो। अगर आप जो भी फोर्सफुल खाना भी उसे खिलाएंगे तो एक फियर फोबिया उसके अंदर डेवलप हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी खाने के अगेंस्ट। सो जस्ट मेक श्योर हाथ पकड़ के या भाग भाग के आप उसे खाना ना खिलाएं। ही और शी शुड एंजॉय द मील, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप बच्चे के सामने प्लेट रख दें, डिफरेंट डिफरेंट क्यूट सी बच्चे के सामने प्लेट्स रख के बच्चे को जो है वो डिफरेंट मील्स इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। बच्चे को ताकि पता लगे कि मेरे पास व्हाट्स ऑन माय प्लेट वाली बात है कि क्या क्या मेरी प्लेट में अब तक है, क्या क्या ऑप्शंस है। अगर आप रोजाना खुद भी एक खाना खाते रहेंगे तो आपको पता है कि कितना ज्यादा आपको भी प्रॉब्लम होता है। तो बच्चे के लिए भी आप उससे सोचें उसके शूज में जाके कि बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करना चाहिए, डिफरेंट इंट्रोड्यूस करनी चाहिए रेसिपीज। एक और चीज मैं बात करी थी, अगर आप फॉर्मूला मिल्क के बच्चे को लेकर आए हैं तो मेक श्योर कि आप निपल से उसको कप में आप ट्रांसफर करें। ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जो है वो चैलेंजिंग होता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि निपल इनके लिए ईजी होता है क्योंकि उसमें चीनी डली हुई होती है और बच्चे के दांत भी खराब हो रहे होते हैं, और बच्चा दूध तो पी रहा होता है लेकिन बच्चे के दांत और बच्चे की जो निपल वाली आदत होती है वो जाती नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हैबिट को ब्रेक करें उसकी, और उसे आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करें स्ट्रॉ पिलाने की या कप पिलाने की, ठीक है, ताकि वो अडल्ट की तरफ जा रहा है तो वो ईजी हो जाए आपके लिए भी। 2 years तक वो एटलीस्ट इन चीजों को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। सो यस, अब आगे हम बहुत सारी डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक हाउ वी गोना गो थ्रू इट। सो few are the essential nutrients which your kid want, ठीक है। there are few do's and don'ts which I want to discuss here. Number 1, आप कोशिश करें कि आपका चाइल्ड जो है वो 4 मील्स लेता हो दिन में, ठीक है। ये बात कर रही हूँ ऑलमोस्ट अबव 1 से लेकर 5 years तक ऑफ एज में। 1 से थोड़ा सा अबव में हम कहते हैं कि 3 मील्स भी ले ले तो बहुत है, ठीक है। लेकिन जब अबव 2 हो जाता है या 2+ होता है तो हम उसको कहते हैं कि आप 4 मील्स पे आ जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता 5 मील्स में तब्दील हो सकता है। अब आप कहेंगे कि 5 मील्स का मतलब क्या है, 4 मील्स का मतलब क्या है। सो याद रखें कि मैं अपने जितने भी पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको यही प्रेफर करती हूँ कि वो 3 अपने अच्छे मील्स ले लें और 2 अपनी स्टैकिंग कर लें रादर देन 4 मील्स, ठीक है। लेकिन हमारी जो मैं कहूँगी जो WHO है वो यही कहती है 4 मील्स बच्चे को देने चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक मील जो है वो थोड़ा सा कम हो, जो हम बात भी करेंगे डाइट प्लान्स का तो आपको पता लगेगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को स्नैकिंग ट्वाइस कर लें और 3 जो है वो आप मील्स कर लें, ताकि बच्चे को खाना प्रॉपर मिल रहा हो और साथ ही उसको स्नैकिंग में डिफरेंस मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चाय पीते हैं तो चाय के साथ बिस्किट लेते हैं, इसी तरह बच्चे के लिए भी एक स्नैकिंग जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, उसको मजा आता है। तो स्नैकिंग से बच्चा सीख रहा होता है कि उससे कैसे मील की तरफ आना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा किस तरह से उस चीज को भी आदत बनाए। अब आप क्या क्या कर सकते हैं, जो आपकी डाइट है उसके अंदर आपकी मल्टीपल चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। नंबर 1, आप उसके अंदर फ्रेश जूसेस को इंक्लूड कर सकते हैं। मौसम के लिहाज से कीनू है तो कीनू का जूस है, स्ट्रॉबेरी शेक्स है। अगर आपको लगता है कि फालसे का थोड़ा बहुत खट्टा है तो फालसे का थोड़ा इंट्रोड्यूस कर सकती है शुरू में 1-2, ठीक है। वाटरमेलन बच्चे को इंट्रोड्यूस करें थोड़ा थोड़ा, हर चीज एक अमाउंट में आपने करनी है। हम डिस्कस करेंगे क्या अमाउंट डाइट प्लान में, थोड़ी थोड़ी अमाउंट से बच्चे को हर चीज का टेस्ट देना जरूरी है। पीच है, अगर आपको लगता है मौसम्बी है, एप्पल है, ये सारे फ्रूट्स आपको लगता है कि बच्चे को आपको देने चाहिए तो आप उसे आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करें थोड़े थोड़े अमाउंट में और आहिस्ता आहिस्ता उसकी अमाउंट बढ़ाते रहें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी आवाम बहुत अच्छी तरह कर रही है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट,
हम प्रोबायोटिक्स बच्चों को शुरू से दे रहे होते हैं, दैट इज दही। हमारे घर में हर चलते फिरते जो है दही बन रही होती है, दही होती है। प्रोबायोटिक्स कर्ड जो होती है, योगर्ट्स होती हैं, हम उसको बहुत प्रमोट करते हैं और हम कहते हैं कि यस, आपको जितना आप ले सकते हैं आप ले सकते हैं। साथ साथ मैं सवाल भी ले रही हूँ। एक बहुत अच्छा सवाल है कि बीइंग अ टीचर, हाउ वुड वी डील विद अ चाइल्ड हु डजंट वांट टू ईट इन द लंच टाइम? ओके, सो व्हाट यू गोना डू, फर्स्ट आप उसको ऑब्जर्व करें कि बच्चे को जो है वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो लंच लेना। ठीक है, क्या उसकी हैबिट रोजाना की है? क्या ये तो नहीं है कि वो घर से खाना ऑलरेडी खाकर आया है इतना? क्या उसकी तबीयत में ठीक है कि नहीं है? आपने मेक श्योर करें, बच्चे से सवाल करें, आप बच्चे से कांटेक्ट करें। बच्चा आपको बहुत सारी चीजें सच बताएगा। ठीक है, और क्यों उसको लंच नहीं लेना है, क्या पता उसका वो जो खाने का जो आपको दिया है मदर ने बच्चे को खाना खिलाने के लिए, वो सेम ही है और डेली वो ही खा रहा है, नथिंग न्यू, और वो ज्यादा फैसिनेट हो रहा है दूसरे बच्चों के खाने से। तो इन दैट अगर इन दैट केस अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा लंच नहीं ले रहा, तो देयर यू कैन इन्वॉल्व द पेरेंट, और पेरेंट को आप कहेंगे न्यू चीजें इंट्रोड्यूस करें। फिर देखेंगे कोई उसका स्टमक इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई एलर्जी तो नहीं है उसको जिसकी वजह से वो अब उस चीज को नहीं ले सक रहा है। ठीक है, और अगर कर सकते हैं आपकी स्कूल्स के अंदर ये बहुत अच्छा होता है कि कोशिश करें कि आप एक्सचेंज ऑफ प्लेट्स कर सकते हैं बच्चों के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप ये हैबिट करें कि शेयर एंड केयर। क्या पता जो अली ने खाना लाया है वो सना के पास खाना नहीं है, तो सना और अली का खाना चेंज होकर दोनों को अच्छा लगे और दोनों शेयर भी कर रहे हो, और शेयरिंग का भी एक जो है ना पर्सपेक्टिव आए। तो यहाँ आप शेयरिंग ऑफ प्लेट भी कर सकते हैं, और प्लस आइडेंटिफाइंग ऑफ अंडरलाइंग कॉज रीजन जो है वो आप देख सकते हैं। अब बच्चा अगर आपको कहता है कि मैं लंच टाइम पे नहीं खा सकता, तो उसके लिए कोई ऑल्टरनेट ब्रेक टाइम निकालें जब वो थोड़ा सा अपना मील ले ले। क्या पता उस वक्त उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या ही इज रिलक्टेंट टू ईट इन फ्रंट, कोई फोबिया है, कोई एंजाइटी है, कोई चेंज ऑफ मूड है। ये सारी चीजों को आपने अच्छी तरह से जो है ना आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फ्रूट्स की। साथ साथ प्रोबायोटिक्स के आप फ्रूट भी दे सकते हैं, वेजिटेबल्स की प्यूरीज दे सकते हैं। हम बचपन में कहते हैं कि बच्चों को जो है वो अच्छी तरह प्यूरीज बना के आप खिला सकते हैं। ठीक है, जिसपे पालक की प्यूरी होती है बच्चों के लिए, हम कद्दू जो होता है उसको मैश करते हैं, कभी हम मैश पोटैटो कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, कभी कैरेट का हम जूस निकाल होते हैं, कैरेट का पेस्ट बना के प्यूरी बना के बच्चों को चम्मच खिला रहे होते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ईजी होता है। जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो हम बॉईल करके उनको पकड़ा देते हैं, या फिर हम कभी कभार साबित भी पकड़ा देते हैं, क्यूबर्स हो गए, कभी कैरेट्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें, गाजर वगैरह जो है, या मूली है, ये सारी चीजें, इवन प्याज भी बच्चे को आप दे सकते हैं। ठीक है, एवरीथिंग हैज इट्स बेनिफिट। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है बच्चा आप कोई थोड़ा बहुत अगर नॉन स्पाइसी कोई स्ट्यू यानी कि वो ले रहा है सालन आपके साथ, बहुत कम मिर्चों वाला सालन लेता है, तो उसको आप पराठे चपाती के साथ थोड़ा सा डिप करके लाइट सा उसे खिला सकते हैं, ताकि उसको टेस्ट डेवलप हो कि घर का खाना कैसा होता है। ठीक है, दिस इज द वे यू कैन इंट्रोड्यूस अ मील टू अ चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को जो है वो मटर और जो है वो दालें और चने इंट्रोड्यूस करें, वो बच्चे के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होते हैं। ठीक है, और WHO बहुत इस चीज पे करता है कि वो न्यूट्रिशनल जितनी स्ट्रेंथ उनकी है, जितनी वो इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी डेवलप करने की कैपेसिटी उनकी है स्प्राउट्स की और बीन्स की, वो किसी की नहीं है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज भी ऐसा नहीं है जो आपको निग्लेक्ट करना चाहिए। सो व्हाट आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले ग्रेन्स। हम बात करते हैं कि ग्रेन्स जो है वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेन्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? सबसे पहले तो आप बच्चे को जो है वो सीरियल दे सकते हैं। ठीक है, उसमें आप कोशिश करें कि शुगर या ज्यादा फ्राइड या कोई ऐसी चीज ना उसको दें, नमक वगैरह जो उसको जो है वो ज्यादातर आर्टिफिशियल फॉर्म मिल जाए, बनस्बत आप उसको नेचुरल चीजों को अंदर इसके इंट्रोड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रेड देते हैं, चपाती देते हैं, रोटी देते हैं, पराठा देते हैं, तो वो बच्चे के लिए फाइबर बहुत ज्यादा उसको देगा, वाइटामिन देगा, मिनरल्स देगा। ठीक है, बनस्बत उसको अगर आप कोई केक या बिस्किट्स के फॉर्म में दे रहे हो या पास्ता के फॉर्म में दे रहे हो तो वो नहीं देगा। राइस आप बच्चे राइस बहुत शौक से खाते हैं। आप राइस के अंदर आप कभी कभी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, कभी आप उसको फ्राइड राइस बना के दे सकते हैं, कभी आप उसको बॉइल्ड राइस दे सकते हैं, कभी आप उसको, क्योंकि बॉयल आप जब करते हैं तो स्टार्च निकल जाता है। ठीक है, तो वो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और थोड़ा बहुत स्टार्च अगर वो ले भी लेता है तो कोई बात नहीं, ग्रोथ के लिए उसकी कोई मसला नहीं है। लेकिन हर चीज का एक मैं कहूंगी एक 12 बाइट्स, 10 to 12 बाइट्स आर वेरी मैं कहूंगी कि इनफ होते हैं फॉर 2 year किड। ठीक है, और लेस देन दैट आप उसके लिए, फिर जब बच्चा छोटा होता है तो आप चावल उसे थोड़ा सा बॉईल करके, उसे मैश करके
आलू के साथ खिला सकते हैं, ठीक है। तो चावल आलू मैश करके बच्चों को बहुत खिलाया जाता है क्योंकि वो बहुत ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ग्रेन्स में तो मिनरल्स वाइटामिन भर भर के, फाइबर है, तो बच्चे का पेट कभी खराब नहीं होगा। जिस बच्चे में फाइबर की कमी होती है उसका पेट का हमेशा मसला रहता है, उसको मोशन वगैरह लगे हुए होते हैं, कभी पेट में दर्द होता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज इंट्रोड्यूस करें। नेक्स्ट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जब आप देखते हैं कि बच्चे फ्रूट्स देखते हैं तो बच्चे फ्रूट से सबसे ज्यादा फैसिनेट होते हैं, मैंने नोट किया है, क्योंकि उसके डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, और ये आपको इंडिकेशन देता है कि कितना बच्चे अट्रैक्ट होते हैं न्यू कलर्स से, ठीक है। तो आप न्यू प्लेट्स, न्यू स्पून्स, न्यू फूड बना के बच्चे को देंगे तो बच्चा डेफिनेटली डेकोरेटेड फॉर्म में, अगर आप उसको दे रहे हैं फनी फॉर्म में उसको दे रहे हैं, कुछ शेप्स बना के या कुछ, तो वो बच्चा खुश होगा। स्टार के फॉर्म में आप उसे कोई कस्टर्ड दे रहे हैं या उसको कोई ब्राउनी बना के दे रहे हैं होममेड, एनीथिंग यू आर गिविंग विच इज एक्चुअली गिविंग बेनिफिट टू अ किड। सो वाटर है, फ्रूट्स के अंदर वाइटामिन है, मिनरल्स है, और सबसे अच्छी बात है कि फाइबर सबसे ज्यादा इसमें होता है, ठीक है। तो 5 पोर्शंस फ्रूट के बच्चे को आप दे सकते हैं एवरीडे में। तो 5 पोर्शंस में क्या कह सकते हैं, जैसे आप बच्चे को जो है वो क्यूब्स के फॉर्म में काट लें, या बच्चे को जो है वो लंबी लंबी फॉर्म्स में काट लें, सॉफ्ट सॉफ्ट जो है ना फ्रूट दे दें, ऐसा नहीं जिससे उसे चोक हो जाए। आगे हम बात भी करेंगे कौन से जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है फूड की। सो आप कोशिश करें बच्चे को जो है एडिबल फॉर्म में, ताकि उसके लिए इजीली एक्सेप्ट हो वो चीजें उसको दें, ठीक है। लेकिन मस्ट इंट्रोड्यूस एवरी न्यू फूड टू हर। इसका रीजन ये भी होगा, आप एलर्जीज भी फाइंड आउट कर सकेंगे, और आप ये भी देख सकेंगे बच्चे को कोई चीज मजा आ रही है कि नहीं आ रही है, और बच्चे को क्या चीज का ज्यादा जो है वो मैनर्स है। बच्चे को ऐसा नहीं कि आपने शुरू में तो हम कहते हैं कि बच्चे को पिक करना आना चाहिए, पिक फूड होना चाहिए, कि आप उसको मैश पोटैटो दे रहे हैं या एप्पल दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं वो पिक करें, क्यूम्बर पिक करें। आहिस्ता आहिस्ता उसको आदत है फॉर्क पकड़ने की, उसे स्पून पकड़ने की, ताकि उसको मैनर्स आए टेबल के, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेबल मैनर्स भी साथ साथ उसे सिखाएं। फैट्स एंड ऑयल्स में सिर्फ आपको फायदा ये होता है कि आप बच्चों को जब भी दे रहे होते हैं तो बच्चे का ब्रेन काम कर रहा होता है, बच्चे का ब्रेन बनता ही फैट से। अब आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर फिश है और बादामें हैं, बच्चों को हम कहते हैं ड्राई फ्रूट भी दें सर्दियों में, बादाम दें, और खजूरें हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा दें बच्चों को, एवोकाडोज दें, कॉर्न ऑयल्स वगैरह जो होते हैं जिसमें खाना पकता है, या ऑलिव ऑयल में पकता है, कैनोला ऑयल, सोयाबीन्स में, इसके अंदर जो है वो आपके पास बहुत फायदा होता है कि बच्चों को जो है वो बहुत सारी बीमारियों से जो है ना बच सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग हैज इट्स नेगेटिव पार्ट एज वेल। बड़ी होकर ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रेन का मसला हो सकता है। हर चीज का एक मुतवाजन जो है ना कंटेंट होता है जिसको आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फैट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो आपके वाइटामिन होते हैं ना डिफरेंट जगहों से जो आपको मिलते हैं, खानों से मिलते हैं, A, D, E, K, इनको सॉल्यूबल करने में हेल्प करता है। बॉडी में जो वाइटामिन आते हैं तो उनको एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है, सॉल्यूबलाइज करता है, अदरवाइज वो वाले वाइटामिन आपकी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों के अंदर फैट्स का भी थोड़ा सा एलिमेंट हो, जिसमें फ्राइज हो गए, थोड़ा बहुत नट्स हो गए, बच्चों को बादामें दें। बच्चों के लिए अगर आप सूजी की रब बनाते हैं, सूजी वाली कोई मिठाई बनाते हैं, उसमें थोड़े से आप डाल दें ड्राई फ्रूट। बच्चे को ड्राई फ्रूट्स की जरूरत होती है दिमाग चलाने के लिए, जैसे बड़ों को चाहिए होती है। इसके अंदर इतने सारे फैट्स और ओमेगा होते हैं कि आप बच्चों के ब्रेन में बहुत फायदा होता है इसके लिए। नेक्स्ट इज मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने स्टार्ट में बात की कि आपके पास विटामिन डी की भरपूर तरीके से आपको जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट देता है। इसके अलावा B1, B2, B12, मिनरल्स, कैल्शियम, ए विटामिन, सब कुछ एक डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क से मिलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बड़े भी और छोटे भी अपनी बोन्स के लिए दूध जो है वो पिए। अब हर एज के हिसाब से दूध की जो क्वांटिटी है उसमें वेरी है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट। एंड लास्ट इज मीट एंड बीन्स। मीट एंड बीन्स के अंदर जो मैं बात कर रही थी पहले भी कि दालें हैं और जो चने हैं और जो मैं कह रही थी आपसे कि जितना भी गोश्त है उनके अंदर सबसे ज्यादा B12 एंड आयरन होता है, तो इनके अंदर प्रोटीन भी बहुत सारा बच्चों को मिलता है। और यही कहते हैं कि जब भी बच्चों को अगर आप मीट नहीं दे सकें तो कोशिश करें उनको एग, मिल्क, चीज, योगर्ट्स, मशरूम्स या नट्स, सीड्स, ये सारी चीजें बहुत दें। अगर आपके घर में गोश्त रोज नहीं बनता, आपकी जेब आपको इजाजत नहीं देती, तो कोई बात नहीं, आप उसके ऑल्टरनेट उनको बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चने, दालें, अंडे, दूध, इन सब की चीजें देते रहें ताकि उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती रहे, ठीक है। और आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया आप सुने हुए होंगे कि बहुत सारे बच्चों में पेल हो जाते हैं, बच्चे वाइट वाइट हो जाते हैं और खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयरन की जितनी इंटेक है जो मीट के जरिए या पालक के जरिए या एप्पल के जरिए या और दूसरे तरीकों से मिल रही है, वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो बच्चे हमेशा से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अब मैं बात करूंगी एज वाइज मेन्यूज पे।
अब आपने सारी बातें देख ली कि बच्चों के अंदर किस तरह आदत को आपने डेवलप करना है, क्या टैक्टिक्स टिप्स हैं ट्रिक्स हैं जिससे आप बच्चों को खाना दे सकते हैं। फिर हमने बात की कि बच्चों के अंदर जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो होना जरूरी है। अब हमने जो एक एक बात की थी, अब हम उसको एक मेन्यू पे ट्रांसफर करेंगे, हम मेन्यू पे लगाएंगे कि आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी बच्चे वो वाले जो 1 साल या 6 माह से खाने पे आ जाते हैं। 6 माह के अंदर तो वो माँ का दूध पी रहे होते हैं, ठीक है। और माँ का दूध कहते हैं यही है कि 2 घंटे के बाद आप दे सकते हैं उसको, ताकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। और अगर आप माँ के साथ फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो बच्चे को इक्वल उसको अमाउंट ऑफ मिल्क मिल रहा होता है 2-3 आवर्स के गैप के साथ। और रात को हम कोशिश करते हैं कि बच्चे का पेट भरा के सुनाए ताकि बच्चा ना उठे नींद से। जब बच्चा 6 महीने से ऊपर आता है तो हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं कि उसे फूड इंट्रोड्यूस करें, जिसमें आप खिचड़ी या केला इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे को मैश करके, ठीक है। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, जब 1 से ऊपर आहिस्ते आहिस्ते बड़ा होता जाता है, तो अंडर 2 के अंदर उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड लेट्स गिव सम ग्लैंस ओवर इट टुडे। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट के अंदर आपके पास ट्रिमेंडस ऑप्शन है, आप बच्चों को दे सकते हैं। ट्राई तो पहले ये करें जो आप खा रहे हैं वो उसको खिलाएं। सबसे पहले अगर आप उसको एग खा रहे हैं तो एग को तोड़ के अच्छी तरह छोटे छोटे जो है वो कट क्यूब्स करके उसे वो खिलाना शुरू करें। रोटी चपाती इंट्रोड्यूस करें थोड़ी बहुत। स्क्रैम्बल्ड एग्स बच्चों के लिए इजी होता है कि वो पिक करके अपने हाथों से खुद खा सकते हैं। योगर्ट दही बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अ बोल फुल ऑफ योगर्ट इज वेरी गुड फॉर किड्स। सर्दियों में हम थोड़ा सा कहते हैं कि बच्चे को रेशा होता है, इसकी वजह से थोड़ा सा आप जो है वो दही को थोड़ा गर्म करके खिलाया करें, यानी कि वो वाला गर्म नहीं, यानी कि रूम टेम्परेचर वाला गर्म। उसे सर्दी वो वाला जैसे ठंडी दही होती है वो नहीं खिलानी चाहिए, वरना बच्चे को नजला जुकाम हो सकता है। बच्चे को दूध हमेशा ब्रेकफास्ट पे दें ताकि बच्चे का पूरा मील कंप्लीट हो। फ्रेंच टोस्ट हम कहते हैं कि बड़े खा रहे होते हैं तो बच्चे को एक एग, मिल्क और शुगर तीनों क्वांटिटी साथ मिल रही होती है, तो बच्चे को टेस्ट भी डेवलप होता है, उसे साथ साथ दूध भी मिल रहा होता है और साथ साथ अंडा जो प्रोटीन है वो भी मिल रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच टोस्ट आप उसको दें और रोटी फाइबर है जो स्लाइस होती है, ठीक है। तो बच्चा एक एडमिनिस्टर जब कर रहा होता है वो चीज तो उसकी फुल एक डाइट बन जाती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे इस तरह आपसे अंडा नहीं खाते तो वो इस तरह फ्रेंच टोस्ट के जरिए आपसे अंडा या टिक्की बनाते हैं जो हम उसके जरिए अंडा खा सकते हैं या टिक्की खा सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है स्नैकिंग का। आपके ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद अगर आपको ऐसा लगता है बच्चे को भूख लगी है तो आपको उसकी एक्स बता रही होगी कि वो भूखा है, और आपने अगर एक रूटीन डेवलप किया होता है तो बच्चे को पता होता है कि वो अब उसकी मदर उसको कुछ देगी स्नैकिंग में। स्नैकिंग में आप उसको थोड़ा सा लाइट दे दें, जैसे कि कक्यूम्बर्स दे दें, कैरेट की स्लाइसेस दे दें थोड़ा सा काट के, ये बनाना दे सकते हैं स्लाइसेस में। अब मेक श्योर करें कि आप उसको पूरा मील नहीं दें स्नैकिंग में, उसको इतना दें कि उसका हाफ पेट भरा हुआ और हाफ उसका खाने के साथ भर जाए, ठीक है। अब जब लंच का टाइम जब तक आए 2-3 घंटे बाद, तो आप मेक श्योर करें कि बच्चा जो है वो खिचड़ी दही के साथ खा ले, दलिया खा सकता है। मैंने जैसे बात की टिक्की की तो वो एक मील है। एक पूरी टिक्की अगर वो आलू की खा लेता है जो अंडे में आपकी फ्राई हुई है, तो बच्चे को जो है उससे भी फायदा हो सकता है, ठीक है। तो उसके साथ मिल्क दे दें, अदरवाइज वाटर दे दें, और इस तरह से बच्चे का जो है मील ऑफ द डे हो गया है। ये मिल्क के जो ऑप्शंस मैंने 4 जगहों पे लिखे हैं, आप दिन में 2 से 3 मरतबा दे सकते हैं। दैट्स ओके। विल टॉक अबाउट इट कि कौन सी एज में कौन कितने बच्चों को क्या क्या आपने दूध देना और कितने ग्लास ऑफ मिल्क उसके लिए जरूरी है। अब आपका लंच खत्म हो गया, ठीक है। मैं ये प्रेजेंटेशन अगर मोना मुझे कहेंगी तो आई डेफिनेटली गिव इट टू यू गाइस, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपके पास दलिया खिचड़ी का ऑप्शन दही के साथ ऑलरेडी है जो लंच का है, और टिक्की वगैरह भी आप उसके साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। जब डिनर आता है तो हमेशा जो बड़ों को हम कहते हैं कि आपका डिनर लाइट होना चाहिए, लेकिन इतना होना चाहिए कि यू कैन स्लीप होल नाइट, ठीक है। ब्रेकफास्ट हमारा बहुत हैवी था, आपने देखा कि हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस थे, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते थे। मैंने कहा फ्रेंच टोस्ट है, बॉइल्ड एग ले लें, या फिर रोटी चपाती दे दें, या उसे स्क्रैम्बल्ड एग दे दें, लेकिन दही जरूर दें। मैंने प्लस किया उसे, सही है। दही के साथ उसका एक्सेप्ट करना चीजों को ज्यादा इजी होता है, और माँ बाप के लिए भी बहुत इजी होता है कि बच्चों को वो यूज टू कर सकते हैं। डिनर के अंदर आप उसको यखनी दे सकते हैं। यखनी के अंदर क्या होता है कि एक तो ताकत बहुत होती है चिकन की वजह से, बच्चे की जो बोन्स होती है, जॉइंट्स होती है, वो बहुत अच्छी स्ट्रेंथन होती है। इसके अलावा आप रोटी डिप कर सकते हैं चिकन के साथ, जो आप पूरी यखनी बनी हुई है। वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जिसमें मटर, गाजर, आलू, ठीक है, टमाटर, इस सब चीजों का जो अर्क होता है, अगर बच्चा उस वक्त नहीं भी खाना चाहता, लेकिन वो अर्क अगर बच्चे के उसमें रोटी डिप करके आप खिला सकते हैं तो वो बच्चे के लिए इनफ फूड हो जाता है और हेवी हो जाता है बच्चा पूरा, ठीक है। अक्सर आप ये भी कर सकते हैं कि जो पीटा ब्रेड्स होती है वो हाफ पीटा ब्रेड्स के पीसेस करके सॉसी करके उसे अगर होममेड मेयोनीज आप बना सकते
हैं ठीक है, अगर नहीं तो आप उसको मेयोनीज में स्प्रेड करके बच्चे को बाइट्स दें। तो बच्चा इस तरह भी जो है ना बहुत खुशी से जो है ना एक्सेप्ट करता है फूड को। इसके अलावा आप बच्चे को होल व्हीट पास्ता दे सकते हैं टोमेटो के साथ, वेजिटेबल्स के साथ। दैट इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन। लाइट फूड है, बच्चा आराम से खा लेता है, और मिल्क आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस टाइम पे भी। इसके बाद जब वो सोने जाता है तो कोशिश करें आप थोड़े बहुत फ्रूट के बाइट्स दे दें, और फिर बच्चा वो दूध पीकर सो जाए ताकि वो पूरी रात जागे ना। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्म जो आप उसको कर सकते हैं फॉर दी अंडर 2 years ऑफ एज बेबी। अब बात आती है सप्लीमेंट्स। अक्सर बच्चे जो है वो खाना तो खा रहे होते हैं लेकिन वो कंप्लीटली एडिक्वेटली खाना नहीं खाते। तो उन बच्चों में हम ये कहते हैं कि जो है ना आप एक चीज जरूर करें कि ज्यादा से ज्यादा उनकी न्यूट्रिएंट्स थ्रू सप्लीमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करें, दे उनको। अब वो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंटली ये होता है कि आप बच्चे को जो है वो मीनवाइल उसकी मल्टी वाइटामिन की दवाई उसको पिलाते रहें। और हमेशा कहते हैं कि आप जब भी मल्टीविटामिन देते हैं तो वो आप सुबह को देते हैं। इसका खास रीजन ये होता है कि बच्चा पूरा दिन निकाल रहा होता है, तो बच्चे की अल्लाह ना खास खुदा ना खास्ता कोई भी अगर एलर्जीज डेवलप होती है तो वो आप उसी वक्त चेक कर सकते हैं। ठीक है, बनस्बत ये कि आप रात को जो है ना उस चीज को चेक करें। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? मल्टीविटामिन में दे सकते हैं, विटामिन डी के लिए आप दे सकते हैं बच्चों को। अक्सर जो है हम दवाइयाँ देते हैं विटामिन डी की। इसके अलावा मल्टीविटामिन की हम दे रहे होते हैं, वाइटलिन एन। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों को कहा जाता है कि आयरन मालफोर्ड वगैरह जो मेडिसिन होती हैं, ड्रॉप्स होते हैं, कतरे होते हैं, वो पिलाएं। ठीक है, शुरू में जो बच्चे छोटे होते हैं उनको हम अंडर 2 को कतरे दे रहे होते हैं, और जैसे बड़े हो रहे होते हैं छोटे बच्चों में एसीडी ड्रॉप्स बहुत ज्यादा फेमस है, मालफोर्ड बहुत फेमस है जो फॉलिक एसिड के लिए होता है, आयरन के लिए होता है। जैसे बड़े बच्चे हो रहे होते हैं उनको चम्मच पे ले आते हैं, टी स्पून पे, और टी स्पून में आप वाइटलिन एन दे सकते हैं ताकि बच्चे जो है उनका पेट ठीक रहे, उनकी न्यूट्रिएंट्स पूरी हो जाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप बच्चों के लिए वो सारे कंपोनेंट्स को पूरा करें जिसकी उससे रिक्वायरमेंट है। देन द डेली प्लान, डाइट प्लान जो हम इम्पोर्टेंटली डिस्कस करना चाहेंगे आज के दिन, ये कंप्लीट चार्ट है। ठीक है, जो आपको आज बताएगा कि कितना बच्चों को क्या चीज देनी चाहिए। हमने पहले बात कर ली है प्रोटीन्स कहाँ से आती है, ग्रेन्स कहाँ से आती है। अब हम बात करेंगे क्वांटिटी कितनी देनी चाहिए आपको बच्चों को उसकी। 2 years का बच्चा अगर है उसको फ्रूट आप 1 कप दे सकते हैं। एक अंदाजा लगा ले 1 कप में कितना फ्रूट आ सकता है, उतना आप 2 years बच्चे को दे सकते हैं। इसकी एक्सीड करना बच्चे के लिए भी एलर्जिक है और साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे तो वो एक ओबेसिटी की तरफ जा सकता है, उसकी हंगर और ज्यादा बढ़ जाएगी। सो फ्रूट्स इज इंपॉर्टेंट सबसे पहले 2 years ऑफ एज में। इसके बाद 3 years ऑफ एज में यही फूड आप 1 से 1.5 कप में तब्दील कर सकते हैं, और फिर 4 to 5 years में आप वही 1 to 1.5 कप्स जो है बच्चे को दे सकते हैं। इसमें फ्रूट्स के अंदर आप बच्चे को कोई बनाना दे सकते हैं मीडियम साइज का, स्ट्रॉबेरीज दे सकते हैं 4 से 5, आप बच्चे को फ्रूट जूसेस दे सकते हैं, कुछ मैश चॉप्ड या स्लाइस्ड फ्रूट भी दे सकते हैं। ठीक है, फ्रूट्स की एक एग्जाम है जिसके थ्रू आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है वेजिटेबल्स, सब्जियां। इसी तरह से सब्जियां भी हम कहते हैं कि 2 साल के बच्चे को जो है वो 1 कप की सब्जियां देनी चाहिए आपको। इसके बाद 3 साल के बच्चे को 1 और 1.5 कप की सब्जियां देनी चाहिए, और फिर 4 से 5 साल तक के बच्चे को 1.5 से लेकर 2 कप की सब्जियां देनी चाहिए। अब सब्जियों में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? नंबर 1 स्मैश पोटैटोज है, स्लाइस्ड और चॉप वेजिटेबल्स हैं। आप लीफी जो है ग्रीन वेजिटेबल्स दे सकते हैं उसे, कभी उसको खीरा पकड़ा दें, कभी कक्यूम्बर पकड़ा दें, कभी पालक का कुछ सूप बना दें। सूप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द समर्स और विंटर्स। अब विंटर्स में जितना आप बच्चे को दे सकते हैं सूप्स, वो बच्चे की स्ट्रेंथ और एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा वेजिटेबल जूसेस होते हैं, प्यूरीज होती हैं, वो आप बना के दे सकते हैं, अक्सर पुदीने के साथ या कॉर्न्स के साथ, या डिफरेंट पालक के जूसेस बनते हैं, कैरेट के जूसेस बनते हैं, कैरेट की प्यूरीज बनती हैं। ठीक है, आप एवोकाडोस के साथ उसे डाल के बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ। एवोकाडो और जैसे फ्रूट है उसके साथ आप वेजिटेबल का कोई एमलगेमेशन करके बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर बहुत सारे बच्चे जो है वो बॉइल्ड कॉर्न्स खाते हैं, भुट्टे खाते हैं, ठीक है, अगर वो खाना चाहें तो अक्सर कहा जाता है कि 1 small ear ऑफ कॉर्न इंपॉर्टेंट है देना। अब 1 ear ऑफ कॉर्न का मतलब ये होता है कि जैसे हम बात करते हैं ना कि 1 piece ऑफ केक, तो इसी तरह से 1 ear ऑफ कॉर्न का एक बहुत फेमस एक वो है कि आप बच्चे को जो है वो थोड़ा सा पार्ट ऑफ कॉर्न दें। बच्चे का पेट हमेशा से इससे दर्द कर सकता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को जिनको एलर्जीज होती हैं वो कभी कभी कॉर्न पीनट्स वगैरह नहीं एक्सेप्ट करते, तो उनमें हमेशा हम कहते हैं कि थोड़ी सी अमाउंट ऑफ फूड जो है वो इंट्रोड्यूस आपको करने चाहिए।
हैंडसम अमाउंट जो है वो बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं होता। इसके बाद ग्रेन्स की जो है वो कंपोनेंट होती है जिसको हम कहते हैं कि आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके अंदर होल ग्रेन्स होती हैं आपके पास, उसे 3 आउंस के अंदर हम दे रहे होते हैं, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि आप 3 आउंस 2 ईयर्स के बच्चे को दें, फिर 4 to 5 आउंस की अमाउंट जो है वो ईयर्स ऑफ ओल्ड बच्चे को दें, और 4 to 5 आउंस जो है वो आप 4 to 5 ईयर्स ऑफ बच्चे को देंगे, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो है वो यूजुअली 1 आउंस जो होता है ना 28 ग्राम्स होता है, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करते जाएं तो उस तरह 1 आउंस 28 ग्राम है तो 3 को मल्टीप्लाई कर ले 28 से, ऐसा करते 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 आपके आउंस बढ़ते हैं, ठीक है। तो उम्र के हिसाब से ग्रेन्स में आप रोटी दे सकते हैं, चपाती दे सकते हैं, सीरियल्स दे सकते हैं, बच्चे को राइस दे सकते हैं, पास्ता दे सकते हैं, टोर्टिला रैप्स होते हैं वो दे सकते हैं, पीटास दे सकते हैं, बर्गर बन दे सकते हैं बच्चे को, ठीक है। ये कॉर्न फ्लैक्स होते हैं, वो सारे सीरियल फ्लैक्स होते हैं, वो आप दे सकते हैं। तो बच्चा जो है वो स्प्रेड हुआ कुछ भी रोटी के ऊपर या चीज के ऊपर वो इंजॉय करता है। लेकिन मेक श्योर करें कि आप चीनी वाला प्रोडक्ट जो है वो जितना आर्टिफिशियल चीजें हैं या जितना शुगरी है या फैटनिंग है उससे कम करें, ठीक है। जितना नेचुरल उससे देंगे उतना अच्छा है। प्रोटीन फूड्स जो है वो आपने 2 आउंस ऑफ अमाउंट में देना है। प्रोटीन्स के अंदर मैंने बात की आपसे कि उसके अंदर आप एग या पीनट बटर या फिर आप उसको बहुत सारी जो है वो दालें या बहुत सारी ऐसी जो है वो मैं कहती हूँ ना, वो जो कहते हैं कि मसूर और जो कहते हैं कि बीन्स होते हैं, जो वो सारी चीजें जो है ना आप बच्चे को देंगे तो बच्चा जो है वो ज्यादा ज्यादा ग्रो करेगा। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, तो वो बहुत ज्यादा आपके मीट पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जैसे फिश वगैरह है या आपके चिकन वगैरह है, सी फूड है, उसमें बहुत होता है। इसके अमाउंट्स में हम थोड़ा सा कहते हैं कि आप थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें, क्योंकि बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा एलर्जीज इसी पार्ट से आ सकती है, प्रोटीन एलर्जीज बहुत ज्यादा होती है, तो इसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीनट एलर्जीज D6PD के पेशेंट्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं उनमें पीनट एलर्जीज होती है, वो पीनट नहीं खा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बीन्स की एलर्जीज होती है बच्चों के अंदर, और मीट के अंदर भी, चिकन से भी बहुत सारे बच्चों की एलर्जी होती है, एग से बहुत सारे बच्चों की एलर्जी होती है। तो इनकी प्रोडक्ट में थोड़ा सा हम देख रहे होते हैं। तो इसको हमेशा से एक टिप है कि हर मील को आप 3 डेज कंटिन्यूसली दें, ताकि बच्चे के अंदर कोई भी एलर्जी अगर है या उसकी स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या उसकी स्टूल में कोई कलर चेंज हो रहा है तो वो आपको पता लग जाए 3 डेज के अंदर ही, और वो फूड भी आपको आइडेंटिफाई हो जाए। अगर आप खाना चेंज करते रहेंगे, जो छोटे बच्चों में बात करी हूँ खास, अगर आप खाना चेंज करते रहेंगे डेली डेली तो आप कभी भी चेक नहीं कर सकेंगे एलर्जी। आपको एलर्जी अगर चेक करनी है किसी चीज से, सबसे पहले आप देखिए अगर उसे खारिश हो रही है, उसकी स्किन पे कोई एलर्जीज बन रही है, तो उस खाने को 3 दिन तक ऑब्जर्व करें और फिर आइडेंटिफाई करें उसे क्या एलर्जी है। सो प्रोटीन्स को आप 2 आउंस में दे सकते हैं 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को आप 3 to 4 आउंस दे सकते हैं, और 3 to 5 आउंस दे सकते हैं 4 से 5 साल तक के बच्चे को। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर हम बात करते हैं तो दूध वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स, दही, चीज या दूध हो गया, ये सारी चीजें आप जो है बच्चे को योगर्ट्स वगैरह के फॉर्म में 2 कप्स दे सकते हैं 2 साल के बच्चे को। 2 कप दूध आपको देना लाजमी है, इससे ज्यादा आप दे सकेंगे, कम नहीं देंगे। 3 साल तक के बच्चे को भी 2 कप देंगे दूध का आप, और 2.5 आप कप दे सकते हैं 4 से 5 साल तक के बच्चे को। इसके अंदर आपकी हर चीज की डेयरी प्रोडक्ट इंक्लूड जाती है। अब दूध की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बात की जाती है कि जो एक बच्चा होता है फॉर एग्जांपल 2 इयर्स से वो 3 इयर्स तक का है, तो मैंने भी बात की 2 कप्स ऑफ मैंडेटरी उसको देना, ठीक है। और 4 से 8 साल तक के बच्चे को 2 से 2 हाफ जो है कप्स हम कहते हैं कि उसे होना चाहिए, दूध मिलना चाहिए, वही वाली बात जो हमने पहले बात की थी। जो 9 साल तक के बच्चे होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं उनको 3 कप्स ऑफ दूध बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर एक माँ है तो उसको भी 3 कप्स या 2 कप्स देना जरूरी है दूध, ठीक है। बोन्स जितनी ज्यादा आपकी डिटोरिएट हो रही होती है इतना ज्यादा आपको उसकी जो है वो उसकी जो एनर्जी है उसको पूरा करना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है, ठीक है। आप चूज करें फैट फ्री स्किन और लो फैट जो मिल्क उसकी प्रोडक्ट्स को, ठीक है। जितना लो फैट आप लेंगे इतना ज्यादा अच्छा है, ताकि जो जो आपके लिए फैट फ्री होते हैं वो आपको डायरेक्टली कैल्शियम विटामिन डी दे रहे होते हैं। So now last topic of this entire talk, प्री स्कूल्स के बच्चे जो होते हैं, जो 3 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, जिनके बारे में हमने आज बात की, उनको आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, टेक्सचर्स और कलर्स से अगर दें तो बच्चे को जल्दी एक्सेप्टेंस होती है फूड की। दूसरा ये कि सैंडविचेस वगैरह जो बनाते हैं आप, बच्चे को हर चीज उसकी एपेटाइट डे वाइज कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, लेकिन बच्चे को एक चीज पे रिस्ट्रिक्ट ना करें, बच्चे को खुद हैप्पीली एक्सेप्ट करने दें कि वो ये चीज को खाए, ठीक है। अच्छा, हमने बात की बहुत सारी चीजों की, अभी 3 से 4 साल तक के बच्चों की बात की, हमने 4 से 5 साल तक के बच्चों की बात की। ब्रेकफास्ट के अंदर आप उसे बहुत सारी और भी चीजें दे सकते हैं, जिसके अंदर आपके टोस्ट है, वेजिटेबल
अवेलेबल सैंडविचेस है, ठीक है। आप सीजनल फ्रूट्स वगैरह, सूप्स वगैरह दे सकते हैं, जो मैंने बात की, मिल्क शेक्स वगैरह। लंचेस के अंदर आप चपाती, राइस वगैरह दे सकते हैं, थोड़ा सा घी डाल के बच्चे को दे दें, ठीक है। और इसके अलावा इवनिंग के अंदर स्नैक आप दे सकते हैं। जैसे हमने बात की थी ना 4 से 5 मील्स, ये इस तरह से आपकी मील्स और स्नैकिंग डिवाइड हो जाती है। ब्रेकफास्ट के अंदर, फिर ब्रंच टाइम बना देते हैं आप, फिर लंच टाइम बनाते हैं, फिर इवनिंग स्नैक बनाते हैं, फिर डिनर बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चे को सालन रोटी दें, ठीक है, ताकि उसे अंदाजा हो कि दाल क्या है, चावल क्या है, मटर क्या है, दालें क्या हैं, ठीक है, चने क्या हैं, ठीक है। चिकन थोड़ा बहुत चंक्स डाल दें उसके, आलू मैश पोटैटोज दे दें, ठीक है। और कोशिश करें न्यू न्यू चीज की प्रोडक्ट्स उससे बना के दें पास्ता वगैरह के साथ, ताकि उसका चीज भी आ जाए। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस ऑल, बस कुछ ऐसी चीजें जो मैं चाहूंगी कि आप 3 to 5 ईयर्स में इंक्लूड कर दें। सारी वो चीजें रहेंगी, और चीजें आप इंक्लूड ये कर सकते हैं कि बच्चे को सैलेड दे सकते हैं, बच्चे को मीट बॉल्स वगैरह, जो कोफ्ते वगैरह होते हैं, वो आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मिनी मशरूम्स वगैरह ऑमलेट्स बना सकते हैं। ऑमलेट्स को आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं बच्चे बड़ों के लिए, ठीक है। और बच्चों में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आप रोल्स वगैरह की आदत डाल सकते हैं, जो होममेड रोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। पैनकेक्स वगैरह जो है वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों की डाइट में। और कुछ ऐसे होममेड आप रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए, जो मल्टी ग्रेन्स हो, जैसे हुमस वगैरह बना सकते हैं बच्चों के लिए। चने से जो बन रहा होता है, बच्चों को चना ही मिल रहा होता है, लेकिन वो एक पेस्ट फॉर्म में हुमस हो जाता है, तो बच्चे उस चीज को एंजॉय करते हैं। ये एक पूरा मील है। आई रियली वांट कि मैं मोना जो है मैं उसके साथ शेयर कर लेती हूँ, ताकि आपको आगे मिल जाए। सर्दियों के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम हर मील के साथ बच्चे को जो है वो थोड़ा शहद और हो सकता है उसके अंदर हल्दी वगैरह डाल के बच्चों को इंट्रोड्यूस करें। बाकी हर फ्रूट, हर रोल वगैरह चीजें, पास्ता जो मैंने आपसे बात की, वो हर डे के हिसाब से आप इस तरह से चार्ट बना सकते हैं 7 डेज का, ताकि बच्चे को अगर एलर्जीज चेक करनी तो 3 डेज एग्जैक्टली सेम मील मिल रहा हो, और उसके बाद 3 डेज बाद दूसरा मील मिल रहा हो, ताकि आप चेक कर सकें। लेकिन आप इस तरह रूटीन में लेकर अगर आ गए, आपने सारी चीजें चेक कर ली हैं, तो आप बच्चे का एक पूरे स्केड्यूल बना सकते हैं। अगर आप उसे सिरेलैक भी देते हैं तो उसको भी इंट्रोड्यूस के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, दैट नॉट एन इशू। लेकिन मेक श्योर आप कोई चटनी भी इंट्रोड्यूस करें, कोई जैसे मैं या कोशिश करती हूँ, अगर ढोकला भी मेरे घर के अंदर बनता है तो मैं फीका ढोकला भी जो है वो रख लेती हूँ अब, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज बाद में रियलाइज की कि बच्चे को वही चीज चाहिए जो हम खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब वो मुझे पता लगता है कि वो चीजें वही बच्चा देख रहा होता है जो माँ बाप खा रहे होते हैं, बड़े खा रहे होते हैं, उसको वो चीजें खानी होती है, चाहे वो तीखी क्यों ना हो, स्पाइसी क्यों ना हो। तो पहले आप बच्चे के लिए अलग कर लें थोड़ा बहुत, थोड़ा सा स्पाइसेस के साथ, ताकि बच्चे को उस चीज का भी टेस्ट आए। I'm not going into the detail. These all are same things. Just we have added that, like पुलाव के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कटलेट्स बना सकते हैं, बच्चों के लिए छोटे लड्डू बना सकते हैं। ये सारी चीजें बच्चों के लिए हमने डे वाइज एडमिनिस्टर की हैं। सो यस, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप्स हैं जो मैं चाह रही थी कि बच्चों को मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरह से बच्चों के साथ जो है वो खेल सकते हैं, बात कर सकते हैं। छोटे छोटे बाइट्स में बच्चों को जो है ना आप खाना इंट्रोड्यूस करें, और ये बच्चे को देख लें कि बच्चा जो है उस खाने से फेमिलियर हो रहा है 3 दिन में कि नहीं। ऐसा नहीं आपने उसका टेस्ट चेंज कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो खाने को भूल गया है, ठीक है। ब्रेवेजेस आप अगर देते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी ब्रेवेजेस को बना कर दें, डिफरेंट डिफरेंट मग्स और कप्स के अंदर से फैंसी चीजों में डाल के दें, ताकि बच्चे को जो है वो ये ना फील हो कि मुझे जो है वो फूड बहुत बोरिंग सा फूड मिल रहा है, ठीक है। वो ये वर्ड कभी ना इस्तेमाल करे, ठीक है। सो this is all same, I don't want to repeat it. The important thing which I liked about this meal of challenge वाला जो मेन्यू पर था, इसके अंदर इन्होंने जो है वो सबसे ज्यादा देखा मैंने कि कोशिश की है कि चिकन स्ट्रिप्स बना दी बच्चे के लिए, मैश पोटैटोज के साथ कोई और चीज रख दी, टोस्ट बना दिया सिनेमन टोस्ट करके, या फिर बहुत सारे जो है ड्राई फ्रूट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर। बच्चों के लिए आप हैश ब्राउन्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है, राइस और आलू के साथ बना के। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं मैकडॉनल्ड से नगेट्स नहीं खा रहा, मैं बनस्बत घर में बैठे बैठे वही नगेट्स मेरी माँ मुझे बना के दे रही है, या वो हैश ब्राउन्स बना दे रही है, या फ्राइज बना दे रही है, जो उसको देखने में भी फैंसी लग रहे हो, खाने में भी मजा आ रहा है, ठीक है। ये बहुत आपको डाइट प्लान जिंदगी भर के बहुत सारे मिल जाएंगे, इस जस्ट आप किस तरह से उसको मोल्ड करते हैं बच्चे के हिसाब से। सो लास्ट टॉपिक है जो हमारे आज की टॉक का, वो ये था कि फूड के कुछ प्रिकॉशंस हैं। 3 चीजें जो मैं चाहूंगी आप आज अपने घर लेके जाएं। आपने आज डाइट प्लान सारे देख लिए, आपने मालूम कर लिया कि कौन सी चीजें आप किस तरह मोल्ड कर सकते हैं, कितना टाइम आप किस खाने को दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये भी एडमिनिस्टर करें कि बच्चे के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही कोई खाने को लेकर।
तो आप किस तरह उस खाने को अवॉइड करेंगे और क्या कर सकते हैं कि बच्चे को चोकिंग से बचे। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि बच्चे को कोई खाना फंसना नहीं चाहिए। स्मॉल राउंडेड जो होते हैं खाने वो कोशिश करें बच्चा चू करे, अगर चू नहीं करता और ऐसे लेता है तो कोशिश करें वो फंसे ना। जैसे ग्रेप्स है, बच्चों के उसमें बहुत सारे ग्रेप्स फंस जाते हैं गले में, वो खाते नहीं और वो अंदर ले लेते हैं, वो इतने हार्ड होते हैं कि वो खा नहीं सकते होते। पॉपकॉर्न्स हैं, उससे खांसी आ जाती है बच्चों को। कैरेट्स हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे जो अंडर 4 है वो इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर सक रहे होते, कैंडीज वगैरह को। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको थोड़े थोड़े टुकड़ों में जो तोड़ के दें, या बच्चे को पहले बता दें कि इसको सॉफ्टली सॉफ्टली, या आपके हाथ में हो कि आप उसको तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके दें। अगर आप एक साथ उसको दे देंगे तो वो फंस भी सकता है, वो वॉमिट भी कर सकता है। ठीक है, तो चोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है तो बच्चे को जल्दी से जो है आप जो है वो हेमलिश जो होता है, पेट से जो प्रेशर दे रहे होते हैं ताकि बच्चे को चोक ना हो, पीछे से खड़े होकर बच्चे को पेट पे प्रेशर देते हैं ताकि वो उल्टी कर दे और निकाल दे जो मुंह के अंदर गया है, चाहे वो कोई भी चीज हो। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप बच्चे को कहते हैं कि केला खा ले, या फिर आप बच्चे को रोटी का एक टुकड़ा दे देते हैं ताकि वो चोकिंग से बच सके। फूड इंटॉलरेंस, बहुत सारे बच्चों में कुछ एलर्जीज होती हैं, कुछ ऐसे फूड जिनसे उनको इंटॉलरेंस होती है। लैक्टोज जो दूध के अंदर एक होता है एंजाइम, उससे बहुत ज्यादा बच्चों को एलर्जीज होती है। तो उसको दूध से हम चेक कर रहे होते हैं कि बच्चा अगर बहुत ज्यादा एलर्जीज फॉर्म अगर रिएक्शन हो रही स्किन पे या खारिश हो रही है तो उससे हमें पता लग जाता है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है कि बच्चे जो है वीट यानी कि गंदम नहीं खा सक रहा होता है, बार्ले नहीं खा सक रहा होता है, तो फूड एलर्जीज होती हैं। इसमें भी बच्चों के जो है वो आपको साइड इफेक्ट्स बॉडी पे दिखते हैं। तो ये इंटॉलरेंसेस के लिए भी हम कुछ टेस्ट भी होते हैं बच्चों को देते हैं, और माएँ भी 3 दिन मुस्तकिल देकर चेक कर रही होती हैं। ठीक है, और डॉक्टर्स भी अक्सर चेक कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स होते हैं जिसमें बच्चों को पता लग जाता है कि कोई चीज से इंटॉलरेंस है उनको। तो दूध से भी हो सकती है और वीट से भी हो सकती है, गंदम से भी हो सकती है। इसके बाद सिवियर फूड एलर्जीज होती हैं। एक बच्चा जो है 20 बच्चों में से अंडर 3 के अंदर फूड एलर्जीज में मुब्तला होता है। अब वो मिल्क से हो सकती है एलर्जी, कोई अंडे से हो सकती है कि सूजन हो जाना, रेड धब्बे हो जाना, बच्चों का खारिश करना, बच्चों को नजला होना, और बच्चों बच्चों का एक कंफ्यूजन क्रिएट होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। वो नट से हो सकता है, कैजू पिस्टैचूज से हो सकता है, एलमंड्स वगैरह से हो सकता है, वीट जो गंदम मैंने बात की, फिश वगैरह से हो सकता है, सी फूड से हो सकता है। अब जो अगर फूड एलर्जी आपको होती है स्किन पर, तो वो सबसे पहले आपको स्वेलिंग या खारिशों में या रेडनेस में होगी तब्दील। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर वो बढ़ती है एलर्जी तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है बच्चे को, या आपको आवाज में तब्दीली हो सकती है, सांस लेने में, खाने में मुश्किल हो सकती है, दुश्वारी हो सकती है। पेट के अंदर बच्चों को वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होगी, दर्द हो रहा होगा, बच्चा कहता रहेगा कि मेरा टमी हर्ट हो रहा है या दर्द कर रहा है मुझे, इची बहुत ज्यादा हो रहा होगा गला और फेस पे, बहुत ज्यादा उससे नौजिया वॉमिटिंग होगी। इसके बाद बच्चा फेल भी हो सकता है, ठीक है, डिजी हो सकता है बच्चे के अंदर, चक्कर आना, लो ब्लड प्रेशर होना, और आहिस्ता आहिस्ता होता है कि बच्चे को हेडेक वगैरह हो रहा होता है, वाटरी आइज होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एलर्जीज को जो है वो आइडेंटिफाई करें। आज हमारी पूरी जो 1-1.5 घंटे की जो टॉक थी उसके अंदर हमने ये अखज़ किया है कि जो भी हम प्लान्स सुन लें, जो हमें इतने बेशुमार आज मिले हैं, ठीक है, हर चीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट है कि आप चीज को बैलेंस रखें। सही है, हर चीज का बैलेंस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चेक करना बहुत जरूरी है कि अब बच्चा बढ़ता जा रहा है तो कौन सी एलर्जी से उसे बचा जा सके, ठीक है, और अगर एलर्जी होती है तो उसे कैसे रोका जा सके, उसका क्या ऑल्टरनेट फूड रखा जा सके। अगर वीट से एलर्जी है तो उसको कौन सा खाना आप दे सकते हैं। वीट के अलावा बहुत सारे ऐसे जो खाने होते हैं, सनफ्लावर जो है वो मैं कहूंगी कि आपके न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो यूजुअली आपको प्रेफर करवा रहे होते हैं, लेकिन काफी लोगों में ये होता है कि फिर हम उसको ऑल्टरनेट दे रहे होते हैं कि अगर बार्ले से नहीं है तो वीट खा ले, वीट से नहीं है तो बार्ले खा ले, इस तरह हम ऑल्टरनेट करते हैं उसके आटे को। दूध है तो लैक्टोज फ्रीज होते हैं, या ऐसे बच्चों के लिए होते हैं जो लैक्टोज के बगैर होते हैं दूध, उनको हम कहते हैं वो ले लें। ठीक है, तो कुछ ऑल्टरनेट्स आपके न्यूट्रिशनिस्ट, आपके पीडियाट्रिशियंस आपको देंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। लास्ट में मैं एक मैसेज के थ्रू आज का टॉक फिनिश करना चाहूंगी। Continue to offer food without pressure. You are responsible for what foods are offered, when and where. आप रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा खाना कब और कैसे दिया जा रहा है। योर चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इफ दे ईट एंड हाउ मच। फिर आपके बच्चे की एक हो जाती है कि वो बच्चा कितना ले रहा है नहीं ले रहा है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने उसको खाना देना है विदाउट प्रेशर। ठीक है, एंड विद दिस नोट आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग मी चांस टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Salima, for the wonderful session. I think that you have already covered all of the queries. So I have received
more than 3 queries, but I think you have already answered. So I will ask just one or two with you. So if the weight is not increasing after certain age of child, so what will be the alarming situation for the parents to understand that when they need to go to the doctor, or to go to the nutritionist or something, because the child is I think might be around 10 years or might be 5 years, but he is not, he or she can't seems like that at that age. So any tips on that? Acha, most important thing is that one thing you have to keep in mind, you don't have to worry about that part. Until and unless your child is active in every activity. However, he's not eating that much meal which is required, but he is active. ठीक है? तो फिर आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैक्सिमम डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आपका बच्चा थोड़ा भी अमाउंट लेता है खाने का और वो एक्टिव है तो वो एक एक्टिव चाइल्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये फिक्रमंदी है कि बच्चा जो है वो एक्टिव नहीं है, बच्चा खाना भी नहीं ले रहा और एक्टिव भी नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता वो वीक की तरफ जा रहा है, फॉर एग्जांपल पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लग रहा, खेलकूद में वो थक जाता है, वो किसी के साथ बैठता नहीं है, वो येलिंग करता है, तो शायद देयर इज चांस कि आप पीडियाट्रिशियन की तरफ जाएं, और हो सकता है पीडियाट्रिशियन आपको साथ साथ साइकोलॉजिस्ट के पास भी भेजे। इसका खास रीजन ये होता है कि बच्चे की जो है वो आपने मूड मॉडिफिकेशन करनी होती है। यहाँ पे क्या आप उसको कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे जो बच्चे को इफेक्ट करिए? फॉर एग्जांपल फोन, मैंने बात की, फोन बच्चे को हाइपर करता है तो फोन को आप छुड़वाएं। अगर माँ बाप के दरमियान कोई ऐसा मसला है जो बच्चा देख रहा है जिससे वो फोबेटिक हो रहा है, डर रहा है, एंजाइटी में आ रहा है, तो वो चीजों को मॉडिफाई करें। कोई ऐसा चीज उसके फ्रेंड्स में है जो जिसकी वजह से उसको इफेक्ट हो रहा है और वो अब डिनाइल की तरफ जा रहा है हर चीज की, और बच्चे की फिर आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएट हो रही है अगर हेल्थ, तो फिर अलार्मिंग साइन है कि बच्चा जो है वो डॉक्टर के पास ही ले जाया जा सके। और फिर इंक्लूडिंग उसको आप भी देखते हैं कि स्टमक को इशू तो नहीं है, डॉक्टर्स ये करते हैं कि स्टमक इश्यूज चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कोई एंटी एंजाइटी अगर कोई मेडिकेशन हो तो वो दे रहे होते हैं, और बच्चों को जो है वो एपिटाइट को इंक्रीज करने के लिए भी मेडिकेशन दी जाती है, टेस्टोरिक्स के नाम से एक आती है मेडिकेशन। आई डोंट वांट यू टू recommend that, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू देयर आर बंडल ऑफ मेडिकेशंस व्हिच आर बीइंग गिवन इन हॉस्पिटल्स जस्ट टू एंश्योर कि बच्चा जो है उसको भूख लगे, ठीक है। तो हो सकता है बच्चे की एपिटाइट बीच में जो है खत्म हो गई हो और आहिस्ता आहिस्ता अब वो जो है अब डॉक्टर के पास जाने का टाइम आ गया है। लेकिन इससे पहले अगर आपका बच्चा एक्टिव है और हर खाने में थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेता है तो कोई बात नहीं, आपने वो फिक्रमंद नहीं होना। जितना आप भागेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, तो आपका बच्चा उतना ही जो है ना आपको तंग करेगा, ठीक है। लेकिन मेक श्योर करना है कि बस वो एक्टिव होना चाहिए। अनटिल अनलेस वो एक्टिव नहीं है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलीमा, एंड आई थिंक दैट यू आर वेरी राइट कि जिस तरह से पेरेंट्स रोल मॉडलिंग करेंगे बच्चा उसी तरह से फॉलो करेगा। आजकल हम पेरेंट्स को ये देखते हैं कि वो मोस्टली टाइम जो है ना अपना स्क्रीन टाइम में या जल्दी जल्दी खा के दूसरे काम की तरफ दौड़ रहे होते हैं, वो उस मील को एंजॉय नहीं करते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट दैट कि वो बच्चा उस मील को एंजॉय करे। सो थैंक यू सो मच। एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट के मिल्क पैक, और आपने जो मिल्क की बात की है, सो मोस्टली व्हाट पेरेंट्स इज डूइंग कि वो मिल्क पैक के बॉक्स जो डब्बे होते हैं वो देते हैं जो रिफाइंड मिल्क है, या फिर वो जो एक काउ मिल्क आता है घर पे जिसको आप बॉईल करते हैं, देन सो व्हाट यू सजेस्ट, व्हिच मिल्क इज मच बेटर फॉर द चाइल्ड? अच्छा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगी। जब बहुत सारे पेरेंट्स को ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जब आपका बच्चा एक मदर फीड पे है तो वो काउ मिल्क की तरफ जाए, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई ट्राइड माई सेल्फ एज वेल कि मैं बच्चे को जो है वो कोशिश करूं कि आहिस्ता आहिस्ता उसे काउ मिल्क की तरफ लाऊं, ठीक है। और कुछ माएँ ऐसी होती है जो मिक्स दे रही होती है, जैसे फॉर्मूला मिल्क होता है और साथ में मदर मिल्क होता है, तो उनके लिए ईजी भी होता है कि वो जो बच्चों को ट्रांसफर कर सके दूसरे मिल्क की तरफ। अब होता ये है कि कुछ बच्चों में एलर्जीज होती हैं, कुछ बच्चों में मोशंस हो जाते हैं, कुछ बच्चों को हैवी लगता है, तो उस सूरत में आप काउ मिल्क को नहीं कर सकते कंटिन्यू, और आप उसको ऑल्टरनेट कोई जो है वो डब्बे वाले दूध दे सकते हैं, फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है अनटिल बच्चे का पेट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ऑलपर्स के जो मिल्क आते हैं या मिल्क पैक वाले आते हैं उसमें कोई मसला नहीं है, बच्चे को अगर एक्सेप्ट होता है तो बच्चा वो लेगा। अगर काउ मिल्क उससे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है और उसकी हेल्थ में थोड़ा सा डिटोरिएशन आ रहा है तो आई थिंक दैट शुड नॉट बी गिवन। लेकिन ऑल्टरनेट ऑफ मदर मिल्क इज बेस्ट, और बेस्ट इज काउ मिल्क, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन फुली बॉइल्ड क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो बच्चे को जब आप काउ मिल्क देते हैं तो ये मेक श्योर करना जरूरी है कि आप बच्चे का जो मिल्क होता है वो प्रॉपर बॉइल्ड हो, और फॉर 1 डे का ये वो मिल्क आप यूज कर लें, और बार बार डाल के अंदर नहीं कर सकते। अगर आप डब्बे वाला दूध देते हैं तो कोशिश करें उसको पर डे के हिसाब से खत्म कर लें। डब्बे वाले दूध का एक फायदा से ये होता है कि वो हाई लेवल पे पेस्चराइज्ड होता है,
तो उसके बेनिफिट्स थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं काउ मिल्क से, जिसमें बैक्टीरियाज बनने के जल्दी चांसेस होते हैं। लेकिन काउ मिल्क माँ के दूध का ऑल्टरनेट अच्छा जरूर है, कंपोनेंट्स उसके अंदर अच्छे हैं नेचुरल, लेकिन सिर्फ अगर बच्चे को एक्सेप्ट नहीं होता तो आप प्लीज उसको डब्बे की तरफ ले जाओ, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसके भी कंपोनेंट्स काफी अच्छे हैं वहाँ। थैंक यू। Thank you. Thank you so much, Dr. Salima, for the wonderful session. And I think we have ended up with the queries as well. So again, thank you everyone for joining us. And inshallah, if Dr. Salima will share the presentation, I will share with you all. So you guys can just email me, or you can just message me. I'm writing my email ID here in the chat box. So you can email me the request and I will get back to you with the presentation. So thank you so much, Dr. Salima, for joining, and thank you so much, Thank you. everyone, for joining. Thank you. Thank you so much. Take care. Take care. Allah Allah Hafiz. Hafiz.